Hello, good evening everyone. Myself Dr. Pranita Patil from Virar, Mumbai. I am your host for tonight. I warmly welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF. It has been a year since we started a second series of Guruji Ke Saath Gurwar, and today marks the 144th session of this inspiring journey. Today, I feel truly honored and privileged to introduce someone very special who has shaped my journey, my mentor, teacher, and guide, Dr. Liaquat Namale sir. Sir, you believed in me when I didn't believe in myself. You reignited a dream I had almost given up on, pursuing my post graduation. It was not only my aspiration but also my father's dream, and your encouragement gave me the strength to make it a reality. Beyond academics, you have also been a constant pillar of support in my personal growth. With your guidance, I have grown both personally and professionally. Speaking of growth, Sir's contribution to homeopathy is truly immense. He is a renowned homeopath from Nasik with more than 31 years of rich experience. Sir introduced the unique concept of MML, Mind Method by Dr. Liaquat Sir, where the focus is solely on the mind and empathy is the mantra. With his vast experience and keen observation, Sir also introduced concept of gestures in homeopathy. Sir has introduced many new gestures in homeopathy. You can go to Sir's channel Homeopathy 24 into 7 on Instagram and you will get to see many new gestures Sir has introduced in homeopathy. Also, you can join the 100 days courses. Thousands of homeopaths till now have done the course, done this 100 days course and have benefited with the course. So you must join this course to learn more about gestures and many other things. So we as his disciples feel immensely proud to call him a true master of gestures. Carrying forward the same vision of simplifying homeopathy and making learning practical and meaningful, the brain behind the successful series of Guruji Ke Saath Gurwar and ongoing theme What Women Want is none other than our beloved Guruji, Dr. Liaquat Namole sir. The first series was immensely successful, and the second series reflects Sir's continuous vision to deepen our understanding, sharpen our observation, and help us grow into better homeopaths. So, friends, let us get charged up and stay focused. I'm sure we are going to learn something unique and valuable today. Without further delay, please join me in welcoming my mentor, Dr. Liaquat Namole sir, with huge round of applause. Over to you, sir. Thank You made it. Thank you, Beta. God bless you. And once again, I'm very proud to have you as my child and my student because you've completed your MD and soon I'm waiting to see your own college, inshallah. All right, Pranita Beta. Okay, so let us start today's lecture. Yeah. So it's a very simple, small case, but that's going to teach. I'm going to teach the remedy through that. It's a very simple, common remedy. Okay, this lecture I was going to take on Dr. Hellman's birth anniversary, World Homeopathic Day, but since it was late that time, okay, because two speakers were there and they took very good time. In fact, we had very nice discussion in that. Okay, so I thought I should take this lecture later. Okay, so the first of every month, first Thursday of every month, I'm going to be there. Don't worry about that. All right, guys. Uh,
Okay, I'm not emotionally very stable because something has happened in my family. Very close person of mine has passed away a few days back. So please bear with me if I'm little off the track sometimes. Okay, I'm little off. If I'm not the typical Liaquat that you all know, you'll perhaps know a bit. Okay, I'm not that famous that everyone knows me. All right. So it's a case, very simple case. A lady called me, okay, for her daughter. Okay, her daughter's fever. Daughter was suffering from fever. Daughter, she's like 26. Okay, she has done love marriage. Okay, she's not. Her fever is not getting better. She was diagnosed with typhoid. So whenever it's a case of fever, I ask कि इसके पहले आप क्या कर रहे थे, मतलब इस पर किस बात का बुखार चढ़ा हुआ है ना। अगर किसी को बुखार है तो हम लोग सिंपल ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि इस इंसान पर किस बात का बुखार चढ़ा हुआ है ना। गाना आपने सुना है ना, कभी 101 कभी 102, जिस दिन से हुआ ये फीवर ये शुरू, है ना, वो याद रखो। तो फीवर चढ़ जाता है किसी पर, है ना, होगा जैसे फुटबॉल फीवर, आईपीएल फीवर, तो कोई बुखार चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी लोगों, चूंकि अभी समर टाइम चल रहा है तो अभी आपको फीवर बहुत मिलेगा, है ना। तो उसके लिए मैं एक केस बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई आस्क्ड हर कि क्या कर रही थी, तो शी सेड कि अंकल मैं काम कर रही थी, मतलब सर पूरा घर का काम निकाला हुआ था, साफ सफाई वगैरह निकाली हुई थी। बोला, ओके, तो मेरा किसने निकाला था, आपने नहीं, वो सासू माँ ने निकाल के रखा था। ओके, ठीक है, तो मेरा फिर आप का मन था करने का, नहीं था, वो सासू माँ ने निकाल के रखा, पता नहीं अभी क्या गर्मियों में क्यों निकाल के रखा, बाद में भी कर सकते थे। सो दिस इज द केस। ठीक है, उसके बाद में बुखार चढ़ा, उसको खाना वाना नहीं जाना था, देन आई गेव डोज। शी वाज फीलिंग वीकनेस एंड ऑल बिकॉज ऑफ दैट, सो आई गेव हर अ डोज ऑफ द रेमेडी 200। ठीक है, एंड आफ्टर 10 मिनट्स द फॉलो अप वाज लाइक शी सेड कि मेरा वीकनेस कम लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, लेकिन बुखार और वो अभी भी लग रहा है, वीकनेस थोड़ा कम हुआ। तो देन आई रिपीटेड द सेम रेमेडी आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, माइंड यू प्लीज रिमेंबर, पोस्टोलॉजी इन सच केसेस आप भी कोशिश करके देखो, आपको सक्सेस मिलता है तो मुझे जरूर बताना, फेल आता है तो भी बताना, आई हेल्प यू, इंशाल्लाह आई ट्राई टू हेल्प यू। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट इज गिविंग मी रिजल्ट सिंस माय almost 31 32 years of experience, mashallah. So then I repeated the remedy after 10 minutes, one more dose, like 10, 15, 15, 20 minutes. It was like she was sitting in my other clinic, and so gave her a dose, 10, 15, 20 minutes. Again, I gave her a dose. And then after second dose, she called me after like 20, 30 minutes. She said, मेरी नींद आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, खाना खाने का मन कर। So then I did not repeat the dose. I gave her that remedy, SOS, to be taken in water whenever she feels weak or feverish or something like that. I said आपको एक फीवर आ सकता है शायद, ठीक है, मगर आपको वीकनेस वगैरह खाना नहीं जाए तो फिर आप दोबारा इसको जैसे हम लोग वाटर डोज देते, एक गोली एक कप पानी में घोल के उसमें से एक एक चम्मच आप आधे आधे एक ही घंटे से लेते रहना अगर आपको तकलीफ हुई तो। एंड आई गिव सम एसल टू बी टेकन फ्रीक्वेंटली। सो दिस इज द केस। ठीक है, इसके अंदर हमको सीखना है व्हाट वुमन वांट्स, भी सीखना है, और कैसे डील करना है, ये भी देखना है फिगर कैसे। ठीक है, तो यू कैन, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और आप लोगों से बात कर सकते हैं, लेट अस डिस्कस। मैं दोपहर में भी पॉसिबल था मुझे लेना, बट आई purposely kept it in the evening so that more people join, and then we have fair discussion, good amount of discussion। तो आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं। बहुत सिंपल केस है, इतनी ही केस है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास है भी नहीं है। इतनी इंफॉर्मेशन में आप क्या समझ रहे हैं, क्या लग रहा है, आप प्लीज अनम्यूट करें और बात करते हैं। जी, हेलो, आप लोग हो, गाइज, आर यू देयर, एम आई ऑडिबल, इज माई वॉइस क्लियर?
Yes, sir. Yes, Yeah, sir. tell me. बोलिए। हाँ सर, ऑडिबल है। हाँ जी, बोलिए ना फिर। कोई तो कुछ बात करो, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, बोलिए। हाँ सर, साउंड क्लियर है सर, साउंड के बारे में पूछ रहे थे ना। नहीं नहीं, अभी केस के बारे में बताओ, मैं केस बताया तो आपको क्या लग रहा है वो बताइए अभी। सर केस तो मैंने नहीं समझ पाया। ठीक है, जो लोग समझे वो लोग बात करें प्लीज, फिर आप भी समझ जाओगे। बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। जी, बोलिए। बाकी लोग बोलो यार, कम ऑन ब्रो, क्या कर रहे हो आप? हेलो, एनीबॉडी? हेलो। हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर ये एक डॉटर इन लॉ लग रही है। शी वॉज वर्किंग क्योंकि मदर इन लॉ ने कुछ काम निकाला था क्लीनिंग का वगैरह। एंड शी मे नॉट बी वांटिंग टू डू इट, लेकिन वो बोल नहीं पाई कि ये मुझे नहीं करना है। शायद गुस्सा आया होगा तो सप्रेस किया होगा। एंड इट इट मे हैव कॉज्ड फियर। आई थिंक सर, मैंने जितना केस सुना उससे ये लग रहा है। फीवर, नॉट फियर। फीवर फीवर सर। हाँ। सो लाइक मतलब जो छोटा केस में जो जितना पता चला वो ये है कि मदर इन लॉ ने कुछ काम निकाला था। शी वॉज ये सब समझ गया, आप मेरी बातें दोहरा रही है, आपका एनालिसिस क्या है वो बताइए। ऑल्सो एनालिसिस ऐसे लग रहा है कि मे बी शी डिडंट वांट टू डू इट बट वाज नॉट एबल So टू what is टेल। the possible rubrics or remedy that you feel because of that? Yes, doctor. सर वो कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस Actions are जस्ट contradictory. due to intention Yes. type. Yes. Let us go to repertory. Okay, I'll share my screen. Screen दिख रहा है? Repertory is visible, right? Okay. Actions are contradictory to क्या rubric है वो? Actions कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्राडिक्टरी। Okay, great. और कोई? Anybody else? सर मेरा भी वही आंसर था, क्योंकि और उसके उसको अलावा? इच्छा। उसके अलावा एडिशंस, एडिशन टू दिस? सर ज्यादा स्टेटमेंट तो नहीं था सर आपका। एक ही स्टेटमेंट था कि वो उसको इच्छा नहीं था फिर भी कर रहा था। ठीक है, और कोई? और कोई बोलिए। एंगर सप्रेस्ड, महेंद्र कौर जी। महेंद्र बिटिया, आपको क्या लग रहा है? एंगर सप्रेस्ड, ठीक है। और कुछ? एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, ओके बेटा। और कुछ महेंद्र बेटा? आई होप यू आर माई बेटा's एज, महेंद्र। Even if you are my sister's age, like all of them beta, so that's fine. So if you combine both of this, then what comes is phosphorus pulsar rupta sepia. Okay. और कुछ? तो ये अपना अज्यूम हो गया ना, गुस्सा दबा लिया, फिर भी ठीक है, ले सकते हैं, गुस्सा आया होगा, दबाया होगा। और कुछ? या एनीथिंग एल्स? और कोई बोलिए प्लीज। सर वर्क एवर्जन टू हो सकता है सर। एवर्जन टू वर्क। कैसे बेटा?
वर्क एवर्जन तो ऐसा रूब्रिक नहीं है ना बेटा, बिजनेस एवर्जन तो ऐसा सी डिड ना, बट एवर्जन टू, सर ये यील्डिंग हो सकती है क्या? हाँ यील्डिंग तो है ना, मान गए ना, मान तो गई, कर तो लिया, शी डिड, राइट, यील्डिंग तो है, यस, बट उसके कारण बीमार भी तो पड़ गई, बट यील्ड तो कर गई, चल तो नहीं रहा है। वर्क एवर्जन टू ऐसे रूब्रिक नहीं ना बेटा, है क्या? अच्छा, वर्क एवर्जन टू इज लेजीनेस है, कैसे लोगों फिर इसको भी अभी डिटेक्ट, और कोई, एनीबॉडी एल्स? आप लोग अच्छा चल रहे हो, यू आर डूइंग गुड एक्चुअली, आई एम लाइकिंग इट। और बोलिए, थोड़ा सा है समय अपने पास, काफी है ना? यस, चलो मैं बता दूं फिर, चलो, या कुछ रुकना है और किसी के रिस्पॉन्स के लिए? बता दूं मैं? अच्छा, ओके। सो क्या था इसके अंदर, मेन क्या था, इसको काम करना पड़ा, एक डायरेक्ट रूब्रिक है, आप देख लो, एक्सर्शन। क्योंकि क्या था ना, जब आप काम करते हो आपका मन नहीं होता है, सी द वर्क दैट यू एंजॉय डजंट गिव यू, डज नॉट टायर यू, राइट? इसको क्या, उसको वीकनेस आ गया उसकी वजह से, ये उसके कारण ये फीवर आया और उसको वीकनेस आ गया, उस जो काम इसने किया घर में उसके कारण शी फेल्ट वीक। आपको वीकनेस कब लगता है? when you are like we discussed, like today also we were discussing that I don't feel weak, I don't feel tired, I don't feel I don't get any problems, though I work for hours together, like 14 hours, 16 hours sometimes in the clinic, I don't get tired of that. Why? Because I enjoy the work. The moment you do not enjoy work, the work becomes what become what does your work Burden become? for you. Burdensome. Burden. So when you are carrying burden, what is it called as? You feel tired and weak. That is okay. What is it called as? When you carry the burden, what is it called as? Tell me. Let us take English class. What is it called when your work becomes a burden? Tell me. When do you feel weak? When the work becomes, what do you feel when the work becomes a Loathing, burden? loathing Huh? at work, Huh? loathing at work, loathing. Loathing you feel, okay. What else? बोझ, हाँ, बर्डन का मतलब बोझ है नैन्सी जी, थैंक यू फॉर द हिंदी। नैन्सी, क्या हो गया पुत्र तुझको, मेरी बच्ची है ना तू। बर्डन का मतलब बोझ ही तो होता है मेरी बेटी। और कोई? Or second thing, can be the aversion to physical exertion. ओके, मेंटल चाहिए क्या फिर उसको, क्या चाहिए उसको? रेगुलर रूटीन काम से उसको भी बीमार नहीं पड़ी, समझ रहे हो आप? सासू माँ ने घर का काम निकाल दिया उसके कारण वो बीमार पड़ गई, ठीक है? प्रॉब्लम कहाँ पर आया? रूटीन काम में उसको प्रॉब्लम था क्या? अब है सासू ऐसी है, सब है, आया क्या उसको प्रॉब्लम? हेलो, No, sir. नहीं No, आया। sir. नो सर। प्रॉब्लम कहाँ पर आया? जब सासू माँ ने घर का साफ सफाई का काम निकाला, समझ रहे हो? तो उसको क्या करोगे आप? मैं यही समझाने की कोशिश कर, ये थोड़ा सा इस बात को आप समझिए। क्या लगता है फिर आपको तब क्या होता है? प्रॉब्लम उसको तब आई, बराबर है? तो क्या मजबूरी में कर रहा है? मजबूरी में सर कर रहा है, विदाउट आपकी एनी आवाज थोड़ी कम इंटरेस्ट। आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है डॉक्टर साहब। इंसान नहीं चाहते हुए मजबूरी में गुस्से में इरिटेबल मजबूरन होके किया उसने, करेगा। ठीक है। हाँ, और व्हाट वाज द लेडीज इंसान थिंग? नहीं चाहते हुए इरिटेबिलिटी में करेगा, गुस्से में, जबरदस्ती जैसे। देखो, इरिटेबल, गुस्सा या जबरदस्ती, क्या एग्जैक्टली आप कह रहे हो? अब हमने एंगर सप्रेस तो ले लिया वहां पर, यस सर। बट स्टिल आई डोंट एग्री टू एंगर सप्रेस।
हो सकता है गुस्सा दबा लिया उसने, बराबर, जिस तरीके उसने बोला कि सासू माँ ने निकाला था काम। लेकिन बहुत ज्यादा अज्यूम करके मत एक चलिएगा, बट ठीक है, आप मानसिकता समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छी बात है। आप उसका मन पढ़ने की कोशिश करें, विच इज नाइस। एंड इफ इट इज कमिंग फ्रॉम फीमेल्स देन मोस्ट वेलकम, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग I want more females to talk. I want to explore the heart. I want to explore your wants, guys. What एक men हेल्पलेस want, I'm फीलिंग going to हो take. सकती है क्या सर? जी, हेल्पलेस फीलिंग हो सकती है क्या? I don't know. I don't know. मैं नहीं पूछा ना बेटा। मेरा कैसा होता है ना, मैं आपको बताया ना, जब मुझे केस समझ आती तो आई डू नॉट प्रोब। मेरा एक सिंपल है, क्यों उतारते हो कपड़े? क्योंकि क्या होता है ना, आप जब भी एक, देखो, जब भी आपको एक चीज पूछ रहे हो, आप उसका एक और परत निकाल रहे हो ना, वो फिश ब्रांड एनालिसिस आप याद रखिए, मैनेजमेंट का एक रूल है। क्या होता है ना कि एक एक आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ, मैनेजमेंट की बुक का एक किस्सा सुनाता हूँ। एक एम्प्लॉय एक एक एम्प्लॉय होता है, 2 दिन काम पर नहीं आता, बॉस उसको सीधा चिढ़ जाता, क्या हो गया, क्यों नहीं आया, ला, 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 उसको फायर कर देता है या फिर उसको पनिशमेंट देता है। और तो अच्छा मैनेजर फिर ये गुस्सा हो जाता, नाराज हो जाता, बीमार पड़ जाता, फिर आके बोलता है कि साहब, फिर ये पूछता है कि क्या हुआ, मुझे बताओ, क्या था इतना अर्जेंट, क्या रीजन था, ये वो। फिर वो बोलता है कि सर क्या हुआ कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी सर। हाँ तो क्या, उसको तो अभी ड्यू बाकी है, उसको तो 6 महीने। हाँ सर, तो उनका पैर फिसल गया, उनको ब्लीडिंग शुरू हो गई, मैं हॉस्पिटल लेके आया, उसको एडमिट किया, मुझे वहां पर रुकना पड़ा, वहां पर रेंज नहीं थी। फिर वो गायनेकोलॉजिस्ट आए, फिर काफी एक्सपर्ट्स आए, फिर उसको हेड लो करके रखना पड़ा। फिर मेरे पास छोटा बच्चा भी है पहला, तो मुझे बच्चे को भी देखना पड़ रहा था। फिर उसके लिए मैं मेरे सासू माँ को बुला के लाया, मैं अकेला हूँ, ठीक है। तो मतलब परत दर परत, एक 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 उसका फिश का क्या हो गया, सब निकल निकल के लास्ट में उसका क्या निकला, फिश का जो स्पाइन था, फिश ब्राइन जिसको, वो निकला। एंड देन ही केम टू नो कि दिस इज द केस, दिस इज कॉल्ड, ये मैनेजमेंट का जो रूल है कि एक 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 निकालते चलते हैं ना। बट फिर आप क्या होता है ना कि आप जब एक चीज बता रहे हो तो आप एक और अंदर 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 लेकर जा रहे हो। तो मुझे इतना निर्वस्त्र करना पसंद नहीं आता। अगर आपको पहले पता चल जाए, मैं वो एम्प्लॉय, मतलब आई वुड बी दैट बॉस टू से कि बाबा क्या था, क्यों नहीं आए, तो बोले साहब ये एक हिसाब, ओके ठीक है, सब ठीक है, तो जरूरत है आपको, आपने कॉल क्यों नहीं किया, हम कंपनी से हम लोग हेल्प कर देते थे आपको। नो सर, तो एम्प्लॉय विल बी लाइक, नो सर थैंक यू सो मच, मुझे आपको तकलीफ देना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं बताया, और मैं बता नहीं पा रहा था, ओके नेक्स्ट टाइम कुछ लगे तो आप बताना। तो क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। आप समझ रहे हो? तो आप कम इन्फॉर्मेशन में अगर आपको पता चल गई केस, तो माशाल्लाह से पेशेंट को भी लगता है कि यार ये कितना अच्छा है। एक दूसरी चीज, एलोपैथ के पास जाकर अगर पेशेंट आया है तो एक अलग, अगेन इट इज अ चैलेंज फॉर अस कि ब्रो तुमने 2-3 दिन सलाइन लगाए, ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया, इतना वक्त लगा, हमने 2 डोज दिया, पेशेंट को अच्छा लग गया। तो फिर अगेन यू विन द पेशेंट एंड देन द फेथ ऑफ द पेशेंट इज, यू विन इट, राइट, राइट। तो पेशेंट का फिर आप पे भरोसा भी बढ़ जाता है, और होम्योपैथी पे भी इंटर्न भरोसा बढ़ने लग जाता है। इसलिए फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ज्यादा पंगे में ना जाऊँ। शायद अगर उसको वो दवाई से फर्क नहीं पड़ता तो मैं शायद पूछता भी, है ना, ये नहीं कि मैं नहीं पूछता, अगर उससे नहीं ठीक लगता तो दोस्त से, तो फिर मैं उससे पूछता कि और बताओ। लेकिन फर्स्ट टाइम में ही माशाल्लाह से 90, 95, 98% केसेस निकल जाती, तो दिन नहीं जरूरत पड़ती। जी बोलिए। Sir, it could be fear of reproaches. कहाँ जा रहे हो आप, सिंपल चलो ना। मैं आपको एक सवाल पूछा हूँ, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो कि when the work becomes burden, what is it called as, what happens if you what you're doing, it becomes burden, then what happens? Sir, you feel pressure. So she felt weak, okay, because of that, she got fever because of that, right?
बुखार तो खैर उसके ऊपर काम पर चढ़ा हुआ था, वो तो अपने को समझ गया, उसने किया हो। लेकिन वो काम जो था, डिड शी एंजॉय दैट वर्क? नो। हेलो, डिड शी एंजॉय डूइंग दैट वर्क? No, sir. No. Yes, But eventually she did it. Hello, she did yes, it sir. to the level that she made her feel weak. It gave her fever, right? So a very, very simple rubric is when the work becomes a burden, anybody? Punishment, sir. No, come on. Stress of work. Yeah, stress, yes, Mehender beta, but क्या शब्द exertion sir, बोलिए, क्या बेटा? exertion. आई लव यू। क्या नाम है आपका डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब नाम क्या है आपका? इरफान सर, है इरफान इरफान। कहाँ से बोल रहे हैं इरफान भाई आप? भिवंडी। अच्छा इरफान, ओ डार्लिंग, इरफान बोल रहा है क्या? ओ यार, ओ भाई यार, क्या बात, समझ रहे हो? सो इट बिकम्स exertion. Hello, when you do not enjoy the work that you're doing, it becomes exertion. Otherwise, it is an exercise. Hello, Aruna Gadekar is saying exhaustion. No, exhaustion is the result of that. So when the work becomes exertion, it exhausts you, it causes you weakness, it causes you illness. Example, औरत जब रोज लेकर बैठ जाए कि शाम को क्या बनाओ, खत्म बात। उसकी कमर दर्द होगी, उसके घुटने दुखेंगे, उसका सर दर्द शुरू हो जाएगा, खाना भी ढंग से नहीं बनेगा। और अगर वो ये देख ले कि भाई, मैं सभी औरतों को मैं एक हमेशा एक देता हूँ, जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, शुरू से इंक्लूडिंग माई वाइफ, आई हैव गिवन दिस एडवाइस। ओके, those who follow it are very happy. I tell you, are very, very happy. They really thank me. I say you just make the list of things that you make. You make very well. One, you make, and उसको और क्या करो आप, स्टेंसिल से कलर कर लो कि जो डिशेस आपकी जो आप बनाते हो, जिसको आपके बच्चे, आपका पति, आपके साथ जो भी है आपका आईपीआर वो पसंद करता है, उसको आप स्टेंसिल से मार्क करो। कोशिश करो कि वही चीजें आप बनाए, आपकी पसंद की भी चीज ऑफकोर्स उसके अंदर है आपको। फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। लंच एंड डिनर इज कूल, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, बट यू मेक द लिस्ट ऑफ दैट। ठीक है, एंड देखो कि आप कौन से दिन चल रहे हैं। अभी एग्जाम्स का पीरियड है, समर टाइम है, तो समर टाइम के लिए कौन सा फूड अच्छा रहेगा? समर के लिए वो आप वो रखो, विंटर के लिए आप वो रखो, रेन सीजन के लिए आप वो रख लो, सिंपल है। फिर देख लो कि घर में इसमें से कौन सी चीजें हैं, बना लो और टिक करते चलो कि भैया ये हफ्ते में मंडे को ये बना था। जैसे अभी मंडे को अरहर की दाल बनी, फिर आप ट्यूसडे को सेम दाल बनाओगे तो आपको लगेगा अरे यार कल ही तो बनी थी ना यार अरहर की दाल, ठीक है। फिर अगर बीवी बोले आपको तो पसंद है इसलिए बना रही हूँ, अरे हाँ पसंद है मतलब दोबारा थोड़ी ना चेंज करो ना ब्रो, कम ऑन। लगातार वही खाओगे क्या? तो मुझको शोले पसंद है, क्या मैं रोज शोले देखूंगा? समझ रहे हो? तो समझ लो ना, आप जिसको दे रहे हो खत्म, एंड देन यू एंजॉय, because then it becomes easy as you pass stool. Just go sit on the commode, pass stool, watch reels and come out. Simple as that. It doesn't give you constipation or so, right? आगे कोड दिसते मगेच, हाँ ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? हेलो, hello girls in the house, women in the house. Yes, sir. Is Yes, this sir. advice good? Brilliant. Thank you so much. So you advise these things to your patients. देखो मुझे सिर्फ रेमेडी पढ़ाने में मतलब नहीं, आई वॉन्ट टू रियली शेयर वॉट एवर आई डू इन द प्रैक्टिस, वॉट एवर विल मेक यू अ गुड डॉक्टर, अ गुड होम्योपैथ. Okay, I will share the things that will create a bond between the patients and you. Okay, that will strengthen the bond. Okay, because you touch their lives. I love touching the lives of people. That's why maybe I write. That's why I'm doing it. Even my stand-up comedy. Okay, I want to touch the lives of people. I want to go back home with you guys. Always, I want to stay with you in your house. Okay, I want something or the other of Liaquat to be there with you.
Anyways, now coming to the case, now it's very simple. So when the work becomes exertion, the lady is obviously irritated, right? So there's a beautiful rubric called irritability. Hello. What's the rubric? Irritability, From exertion. exertion from. So what's the Exertion possible from. remedy that you people, I hope you people have got. So I had taken only two rubrics. Irritability from exertion and actions are contradictory to the intentions. Cool, finished. Then there's a beautiful rubric in Sapia. Exertion, physical aggravates, because it's exertion. So remember this rubric. Females who work or people who work without enjoying the work, mark my word, use this rubric. Exertion, physical aggravates. ओके, ये रूब्रिक आप प्लीज यूज करो। इसके अंदर अभी बहुत है, इसके अंदर नेटवर्क का है, इसके अंदर मैं बहुत बार कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया एगेरिकस बहुत बार यूज करता हूँ, बहुत बार। एगेरिकस इज वन ऑफ माय फेवरेट polycrusts, I tell you, because it is there in clinging grass also. So exertion, physical aggregates, irritability from exertion. Done. I mean, actions are contradictory to intention and exertion, physical aggregates. That is why CPI is a polychrist. Okay? So actions are contradictory to intention and this. So let us understand Sapia now. Everybody agreed with Sapia? Hello? Yes, Hello? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Easy or difficult? Of course, easy, sir. है मुश्किल है होम्योपैथी? No, sir. थैंक यू गाइस. कसं करायचं गेलं फुल स्क्रीन मध्ये? Slideshow. Fine. So what woman wants? Now let us understand what CPR desires. What she desires? She desires countryside. She desires to be alone. She desires company. Breaking thing desires. मतलब क्या है? इसको तोड़ना है ना, ये पैटर्न जो उसके घर में चल रहा है. हेलो, अम्यूजमेंट चाहिए. बेड डिजायर टू रिमेन इन चाहिए होता है कि भैया मुझे आराम करने दो. क्लाइंबिंग डिजायर, मुझे चढ़ना है, वो ठीक है. चेंज डिजायर है. देखो ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है सेपिया का. चेंज, ब्रेकिंग थिंग्स, क्लाइंबिंग. कलर्स के जो उसको ग्रीन शांति चाहिए, लाइट ग्रीन, पिंक इन वुमन. मतलब क्या चाहिए सेपिया को? हेल्प डिजायर टू बी, कि कोई मेरा हाथ थामे, कोई मुझे मदद करे बस. सिंपैथी फ्रॉम अदर डिजायर्स, क्योंकि सेपिया को क्या होता है कि मैं कमजोर हूं. क्यों बताया उसने इन्फॉर्मेशन? देखो आप देखो, व्हाई डिड शी टेल दिस इन्फॉर्मेशन? इस सासू माँ ने काम निकाल के रखा, मुझे कमजोरी लग रही है. मतलब क्या है कि देखो ना, उसको मेरी दया भी नहीं आई कि मुझे कमजोरी हो रही है. हेलो, तो सेपिया को क्या चाहिए होता है? सिंपैथी भी चाहिए होता है. Sympathy. हाँ, प्लीज रिमेम्बर कि मैं को देखो, मैं कितनी बुरी हाल में हूँ. ठीक है, होता नहीं कि क्या बनाओ बाबा. सर क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग का मतलब वही सर क्लाइंबिंग ambition डिजायर वाला, वो फॉर एम्बिशन मतलब वाला क्या चीज है? होती है सेपिया. क्लाइंबिंग मतलब वही उसका एम्बिशन वाला चीज है. लेकिन सेपिया का ये सेंटेंस आप याद रखना कि देखिए ना, मतलब उसको सिंपैथी चाहिए होती. वो जो बहुएं, वो जो लड़कियां मायके आने के बाद में फिर उनका वही चलता ना कि देखो ना कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, मैं कितना काम करें. ये रॉन्ग सफर के अंदर आप फंस जाते हो कई बार कि देखो ना मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, मेरे ससुराल अच्छा नहीं है, मेरी सासू अच्छी नहीं है, मेरी ननंद अच्छी नहीं है, मेरा ससुर अच्छा नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है. ये जो अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं वाला जो होता है ना, ये बोल के ये क्या चाहते हैं आपसे कि आप इनसे सिंपथाइज करें. आप रॉन्ग सफर में मत अटक जाना. सीपिया कई बार, हम लोग सीपिया को कई बार हम लोग नाजा दे देते हैं, आयोस दे देते हैं, लैकेसी दे देते हैं, बिकॉज वी फील रॉन्ग सफर, इसके बाद गलत हो रहा है, उसके अंदर हम लोग फंस जाते हैं. ये उसका इंटेंशन क्या था? व्हाई इज शी टेलिंग यू दिस? बिकॉज शी वांट्स सिंपैथी, कि देखो ना मुझे कितना वीक लग रहा है. तो उसकी मम्मा मुझे बोली थी ना, वो लड़की की मम्मी वाज टॉकिंग टू मी ना, कि देखो ना उसकी सासू ने काम निकाल के रखा है, इसको कितनी कमजोरी हो रही है, इसको आराम भी नहीं करने देते.
मतलब क्या, लड़की ने सिंपैथी गेन कर ली, राइट? हेलो, लड़की ने सिंपैथी गेन कर ली ना, ठीक है। यस सर, यस सर। गो टू द वाई प्लीज, कि भैया इसको सिंपैथी मांगता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, व्हाट शी वांट्स, लाई डाउन डिजायर ड्यूरिंग पर्सपेशन, मतलब जब थक गई है, फीवर ड्यूरिंग, है ना, वॉकिंग डिजायर, मोशन डिजायर, देखो क्लाइंबिंग, वॉकिंग, मोशन, समझ रहे हो आप लोग, है ना। और एक तरफ रेस्ट, एक तरफ उसको क्लाइंबिंग भी है, वॉकिंग भी है, मोशन भी है। कवर डिजायर्स एंड एमुलेट्स, मतलब क्या है कि कोई मुझे, कवर का मतलब क्या होता है, ढके। हेलो, मतलब उसको वार्मथ यस सर। चाहिए होती है, तो उससे क्या होता है, उसका मतलब कि कोई मेरे प्रोटेक्ट करे। वो एक्सपेक्ट क्या करती पति से, कि मुझे प्रोटेक्ट करे, मेरी साइड ले। सासू माँ कुछ करे तो मेरी साइड ले। हेलो, उसको कहते हैं कवर्स, डिजायर्स एंड एमुलेट्स, मेरी साइड ले। उसको भी कवर लिया करो आप लोग। मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मेरे पति मेरे बाजू से बोले, मैं क्या चाहती हूँ, बस ये मेरे साइड से भी नहीं बोलते हैं। हेलो, दैट इज कवर्स, प्लीज रिमेम्बर। कवर का मतलब क्या होता है, कि मुझे कोई ढके, मतलब मेरी कमजोरियों को ढके। हेलो, Yes, sir. Yes, गेटिंग sir. मी, जी। जब मुझे कमजोरी लगे, जब मुझे ढकना लगे, जब मैं निर्वस्त्र हो जाऊं, या जब मुझे और वस्त्रों की जरूरत पड़े, मतलब और प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े। हेलो, तब आप मुझे कवर कर ले, अपन बोलते हैं ना कि उसने कवर कर लिया। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस ऐसे सर। गलतियों पे पर्दा डाल दिया, गलतियां Yes, ढक sir. दिया, बोलते हैं ना आप लोग। हेलो, जी Yes, सर। sir. with me, yeah, so that is cover desires and amulets. Now breathing deep, कि मुझे खुली, मुझे सांस तो लेने दो पूरी, डिजायर टू ब्रीथ डीपली, मुझे सांस लेने का वक्त नहीं मिलता है, बोलते हैं ना लोग, जी sir. जी sir. सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है, मतलब क्या है, वो क्या चाहता है, सांस लेना चाहता है, तब क्या रूब्रिक लोगे आप, ब्रीथिंग डिजायर्स टू डीपली। हेलो, आर यू विथ मी? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। और यस सर। खुली हवा चाहिए मुझको, मतलब क्या, मुझे छूट चाहिए, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। सेपिया हैज नो प्रॉब्लम, शी हैज द डांस, है ना, शी वर्क्स विद सेंस ऑफ रिदम, है ना, डांसिंग विद ग्रेट सेंस ऑफ रिदम। ओनली टू रेमेडीज आर देयर, सेपिया एंड कार्सिनोसिन। तो सेपिया विल वर्क, नो प्रॉब्लम्स। ओनली क्या है कि भैया, जब मुझे आराम, जब जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ मैं, जब मुझे वीक लगे तो मत करो। एक दूसरी जो फेनिंग वाली सेपिया होती है, जिसका लव मैरिज वगैरह हुआ है, जो नाजुक है, जो पिंक डिजायर वाली है, वो फिर पंगे करती है, ठीक है। हेलो, तो दिस यस दिस सर। सेपिया जो कि गरीब घर से आती है, जिसकी माँ बाप ने उसको कर्तव्यनिष्ठ बनाया होता है, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में सेपिया होती है एक। दूसरी सेपिया जो मेरी बेटी देखो ना, जो पहले दिन से इस चीज को हवा दे देती है, जिसकी माँ बाप या जिसका आईपीआर इधर वाला, बिफोर मैरिज वाला, कि हाँ तेरी सासू तो खराब है, ये है वो है, फिर वो सेपिया फेनिंग में चल जाती है, वो फिर नाजुक, फिर पिंक, फिर मैं ये, फिर मेरा नखरा, फिर वो नखरे वाली ये पंगों के अंदर पड़ जाती है, कि मुझे कवर कर लो, मेरे साइड से बोलो, ये कर लो, समझ रहे हो। आई यू गेटिंग, वो ब्रेकिंग डिजायर में जाएगी। और जिसको संसार मिले हैं, संस्कार मिले हैं माँ से वगैरह से, तो वो नहीं करेगी उस तरीके का। या फिर जो मजबूर है, वो फिर करती जाएंगी, ये करेंगी, करते रहेंगी, काम करते रहेंगी। लेकिन बेसिकली सेपिया के अंदर डांसिंग होता है, लेकिन अगर वो मैनिपुलेटिव टाइप या फिर हिपोक्रेसी और फेनिंग टाइप में गई, तो फिर वो सेकेंड वाली साइड लेती है, ब्रेक वाली, फिर वो घर तोड़ के अलग निकल जाएंगे, हस्बैंड से करा लेंगे, ठीक है। आई यू विथ मी? Yes, sir. Yes. यस सर। तो ये दिमाग में मत लाओ कि सेपिया मतलब घर में फुल डांस करेगी, डांस के स्टाइल में पूरा काम करेगी वगैरह वगैरह, नहीं। जब कोई मजबूर नहीं होता है तो उसके असली रंग बाहर आते हैं, याद रखिए। हेलो, क्योंकि सेपिया इंडिपेंडेंट में भी है। आई यू विथ मी गाइस? Yes. यस Yes, सर। sir. एग्रीवेशन क्या क्या है उसके, वीपिंग, वेदर सल्ट्री, सल्ट्री मतलब क्या, अभी जो है धूप वाला है ना, सूखा धूप वाला, वही मतलब जहां पर उसको
वार्मथ नहीं मिले, जहाँ पर उसको वो जैसे क्या कहते हैं उसको, कोजीनेस नहीं मिले, वहां पर उसको ये तकलीफ होगी। वॉकिंग वाइल एग्रीवेट्स, अगेन नहीं चल नहीं पा रही ना वो जिंदगी में, तो वॉकिंग, स्ट्रेंजर नहीं चलेगा उसको, स्ट्रेंजर इन प्रेजेंस ऑफ एग्रीवेट्स, क्योंकि कहाँ पर फेंट कर रही तो स्ट्रेंजर पहचान जाएगा ना। थिंकिंग ऑफ इट्स कंप्लेंट्स एग्रीवेट्स है ना, वीपिंग वाइल नरेटिंग हर सिम्टम्स है ना उसमें। तो जब अपनी कंडीशन सोचती तो है ना, सेपिया में वन मोर रुब्रिक ना, सुसाइडल डिस्पोजिशन अबाउट हर मिजरेबल एग्जिस्टेंस, बराबर है ना। तो इसलिए जब वो अपनी कंप्लेंट्स के बारे में सोचती तो उसको मिजरेबल फील होता है। ठीक है, आई यू विथ मी? तो Yes, ट्रिफल sir. यस सर। उसमें भी उसको छोटी छोटी चीजें भी आज तकलीफ देने लगेगी, शेकिंग, सैडनेस, म्यूजिक, जो भी चीजें उसको सैड करेंगे, जैसे ख्याल, क्योंकि म्यूजिक से भी आप टच हो जाते हैं, म्यूजिक से भी आपको वो चीजें याद आने लग जाती है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप रॉन्ग सफर में अगर अटक गए तो ये सब चीजें आपसे छूट जाती है। ठीक है। मेनोपॉज, क्यों मेनोपॉज से प्रॉब्लम आता है सेपिया को? क्योंकि सेपिया का मेन होता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो जब भी उसकी प्रोडक्टिविटी बंद होने वाली है तो उसको प्रॉब्लम आ जाता है। मेंटल एक्सर्शन इम्पॉसिबल, इरिटेबिलिटी, कंसोलेशन, देख लो कि नहीं चाहिए मुझको कंसोलेशन आपका, टच भी नहीं चाहती ना, शी डजंट लाइक टच, राइट? शी डजंट लाइक टच, शी डजंट लाइक द टच एंड करेसेस। कब? जब उसको कंसोलेशन की नहीं, मुझे नहीं ये हो रहा है। कंसोलेशन एग्रीवेट्स, क्वेश्चन आफ्टर एग्रीवेट्स, बिकॉज इट इज एन एक्सर्शन फॉर हर। क्वेश्चन के बाद में उसको फिर डर लगता है कि यार मैं फिर प्रेग्नेंट ना हो जाऊं, प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो बोझ लेकर घूमना पड़ेगा, फिर वो उसका मन नहीं है, फिर वो बोझ ही हो जाता है ना बच्चा पालना, फिर से और एक जिम्मेदारी, और लाइफ टाइम जिम्मेदारी, राइट? बच्चा इज ए लाइफ टाइम जिम्मेदारी। क्लोजिंग आइज, क्योंकि वो चाहती कि पिक्चर क्लियर रहे, आंख बंद करती तो क्या होता है, ख्याल आने लगते हैं खुद की कंडीशन के, इसलिए उसको सलाह भी नहीं चलती किसी के, देख लो। इवन काइंडली एडमोनिशन, नो आई एम नॉट रॉन्ग, ये लेकर के चलेंगे। बेड इन एग्रीमेंट्स भी देख लो, उसका क्या रूब्रिक, एक सेंटेंस है, बिस्तर पकड़ लिया तो बिस्तर पकड़ लूंगी, क्योंकि सेपिया को पता होता है, सेपिया को क्या डर लगता है, फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन होता है उसका। क्या फियर है उसको, ह्यूमिलिएशन हो जाएगा। एक रूब्रिक, एक अच्छा रूब्रिक है, फियर ह्यूमिलिएशन, देखो लिया हुआ है, फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड, समझ रहे हो? इसलिए उसको फिर बेड इन एग्रीमेंट्स होता है, क्योंकि बेड में दो चीजें होती है, बेड में एक तो इंटरकोर्स होगा, क्वेश्चन होगा, दूसरा बेड पकड़ लिया तो बेड का डर लगेगा उसको, इसलिए सेपिया को काम ही करना अच्छा लगता रहता है। एक सेकंड, ठीक है, जस्ट मोमेंट। ओके, देख लो, स्लीपलेसनेस, इतना सेपिया को डर है कि उसको स्लीपलेसनेस फ्रॉम फियर, इंजरिंग हिमसेल्फ, है ना, फियर, फियर स्टार्विंग है ना, उसका मेन क्या, स्टार्वेशन ऑफ लव भी होता है। हेलो, प्लीज रिमेम्बर, नॉट ओनली भूख, बट उसको स्टार्वेशन ऑफ लव भी होता है सेपिया को, प्लीज रिमेम्बर, क्योंकि पिंक डिजायर में भी है सेपिया। ओके। फियर थंडरस्टॉर्म, अगेन वही फियर ऑफ बीइंग टच्ड, पता है, फियर अबाउट सोशल पोजीशन, क्योंकि बनाती है सेपिया सोशल पोजीशन अपनी। ओके, सेपिया अपनी सोशल पोजीशन बनाती है, सेपिया पावर लॉ में भी है। ठीक है। फियर स्नेक्स तो आपको पता है किस तरीके से होता है, फियर स्नेक्स, स्नेक्स का क्या होता है कि करीब का कोई इंसान धोखा न दे, है ना, आस्तीन के साथ। हेलो, समझ जी रहे हो? सर। हाँ हाँ। जी सर। फियर ऑफ ओल्ड गेटिंग, वही समझ गए कि बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझसे काम नहीं कर पाऊंगी, इंडिपेंडेंस चला जाएगा। ठीक है। और देखो कितना अच्छा, फियर दैट जॉइंट्स आर वीक, मतलब क्या, जो भी रिलेशनशिप है, द रिलेशंस आर वीक, समझ रहे हो? जॉइंट मतलब क्या, जो दो रिश्तों को रिलेशनशिप। जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है, दैट इज जॉइंट। हेलो, बराबर ना, दो रिश्तों को जोड़ने वाला होता है ना, इसका इससे रिश्ता कैसे जुड़ा है, इस जॉइंट से जुड़ा हुआ है। हेलो, उंगलियों का जी सर। रिश्ता रिस्ट से, जॉइंट से जुड़ा है, समझ रहे हो? यस सर, यस सर। तो उसको पता है ना, क्या अलोन इन द ग्रेवयार्ड है ना सेपिया। तो रिश्ते, इसलिए रिश्ते, सेपिया रिश्ते पक्के पक्के रिश्ते बनाना चाहती है, समझ रहे हो? लुक्रेटिव जॉब, है ना। फियर ऑफ डॉक्टर्स कब आता है उसको, जब वो फेल करती है,
तब फियर ऑफ डॉक्टर आता है। ये डॉक्टर रिपेयर करेगा, इसको पता चल जाएगा मेरा ट्रेनिंग का। फियर ऑफ घोस्ट, फियर ऑफ एविल, फिर से देख लो। फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स, फियर ऑफ कंजम्पशन मतलब क्या? व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन इज ट्यूबरकुलोसिस, बट कंजम्पशन इज दैट कंज्यूम्स यू, है ना? तो दैट इज अगेन गोइंग टू मेक यू वीक एंड वीक एंड वीक। कैंसर इज अगेन फेटल थिंग। फियर ऑफ बीइंग अलोन, ये सेपिया को जोड़ के रखता है उसके रिश्तों से। ये जो चीज है ना, फियर ऑफ बीइंग अलोन, ये सेपिया को उसके रिश्तों से, नातों से जोड़ के रखता है। उसको अकेलापन नहीं सहन कर पाती। नेट्रोमुर का कॉन्ट्ररी, नेट्रोमुर को अकेलापन चलता है। इग्नेशिया इज ऑल्सो ओके अकेला। तो नेट्रोमुर बोलती है मुझे कितनी, मैं अकेली जी सकती हूँ। इसलिए तो नेट्रोमुर फिर वो दोबारा शादी वगैरह के अंदर वो सब चीजों में नहीं पड़ती है ना जल्दी। एंग्जाइटी विद फियर, आपने फियर इवनिंग, अगेन इवनिंग मतलब क्या? जब जिंदगी की शाम होती है तो उसको बुढ़ापे से डर लगने लग जाता है, इसलिए उसको शाम से डर लगता है। एक डायरेक्ट फियर इवनिंग इसके लिए लेते हैं क्योंकि इवनिंग के बाद रात आती है, शाम रोमांटिक होती है, शाम को फिर आपका पति आने वाला होता है। अगेन इंटरकोर्स शी डजंट एंजॉय, राइट? बट इवेंचुअली शी यील्ड्स, क्योंकि एक रूब्रिक है सीपीआई के अंदर, मैग्नेटाइज, इजीली मैग्नेटाइज, मतलब दिन भर काम भी करे, हस्बैंड उसके साथ अच्छा भी नहीं रहे, आके शाम को आके फिर थोड़े से मीठे बोल बोल दे तो वो फिर से यील्ड कर जाती है। शी रिस्पॉन्ड्स बिकॉज डांस में है ना सीपी, अगेन डांसिंग विद सेंस ऑफ rhythm, and intercourse or making love is again you require rhythm in that. Hello, ठीक है? Thank you very Yes, much. sir. This is Sepia from my side. Any question? Very nutshell में I tried from woman's perspective, though this is not Sepia. Sepia is a huge remedy. In case, inshallah, if I get time, I'll speak on Sepia for at least 2 to 3 hours. So this is Sepia from my side. Thank you very much, guys. Thank you for the patient listening. Over to you, Pranita. Any questions meanwhile? If you have any questions regarding whatever I spoke today. No, sir, it was very informative. Thank you so much, sir. Thank you. Very informative. I'm happy. I'm happy. Thank you. Yes, beta. Thank you, sir, very much. Thank you so much, sir. Please do go and watch it on YouTube again. Comment, ask questions on YouTube, please. We'll answer all your questions. Any query you ask me on YouTube, on any of my lectures, my team is there. My team, I mean, our team is there. Sorry, they ask me the questions, and I try to answer the questions on YouTube again. So any doubt you all have about homeopathy, please go and comment on YouTube and ask about. Yes, Nancy, I'll tell you when will we take wrong suffer. Next lecture, Nancy. Pari, lakshat theo. I'll answer your Yes, question. We'll take one lecture on wrong suffer. Okay? Thank you, Watch sir. it, maybe Thank you inshallah so it much, will sir. come in the next lecture. I'll take a lecture on that wrong suffer. Okay? Yeah. Pranita, lakshat theo beta. oh sir. Even- Thank you so much, sir, for very insightful session. So we all know those who are doing courses, they also know कि this is the unique way of sir's teaching. Sir always teaches in combination of rubric, like today sir shared about irritability, exertion from, and exertion physical aggravate. So if we take those two rubrics, only sepia and sulfur comes. So this is how we narrowed down to the remedies. So I think sepia is sir's one of the favorite remedy, and like sir said, sir can talk hours together on this remedy. Sir has explored sepia very well, but still every time we listen to sir talking about sepia, we learn something new every time. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for the appreciation. Thank you guys for being there. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Gratitude, sir. Gratitude. सर लियाकन सर वन सर Yeah. आपका नंबर सर ले सकता हूँ सर? हाँ जी ले लीजिए, लिखिए 9850080193 98 500 again repeat 98500
80193. जी This is there on WhatsApp. Just send me hi on WhatsApp. ओके ओके